Hello friends, this is your educator Bibu Prasad Ratha and you are watching Biology by Bibu. Sorry for the late for some past few days as I have not uploaded a video in past 11 days but today I am uploading a very beautiful video on meristematic tissue. Keep watching the video till the end as I have not seen so many videos on meristematic tissues in the past in YouTube who actually described you everything in detail, but I have tried a lot in this video to give you all the details, all the classification, all the types of meristematic tissue in this video. Keep watching this video till the end to get all the information, and remember, if you note it down then you can clearly make a beautiful note on meristematic tissue also. Thank you very much. So today's video is on plant anatomy, meristematic tissue. Before starting meristematic tissue, let me first describe you what is actually a tissue. A tissue may be defined as a group of similar or dissimilar cells performing or help to perform a common function or a set of related functions having a common origin and development. So सबसे पहले बात करते हैं कि टिश्यू क्या होता है. ये एक ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर टिश्यू को लेकर फॉर्मेशन किया जाता है जो कि परफॉर्म करता है कुछ फंक्शंस को या फिर कुछ रिलेटेड फंक्शंस को जो कि कॉमन ओरिजिन होते हैं और कॉमन डेवलपमेंट से आते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि प्लांट टिश्यू कितने तरह के होते हैं. तो ये मेनली दो तरह के होते हैं. एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू. देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स but on the basis of stages of development there are two types. One is meristematic, another one is permanent tissue. So if we first discuss about a seed. Okay, the seed is developed first it develops a radicle, then it develops a plumule, then a cotyledon, then a plantlet, then plant and a flowering plant. Okay, this is actually the stages of development in a dicot. Mostly it is actually presented in a dicot plant. But what is actually you have to observe here? You have to observe that the plant is moving upward and downward fast. Okay, after development from a seed, the plant is actually developing towards the light and towards the ground. Okay, means it actually moving towards upward and towards downward. Okay, the root is actually moving towards the towards deep to the soil, and the flower portion or the flowering part or the above ground part that is actually moving towards the atmosphere. It actually moving towards the light. Okay, so the plant is mainly developing longitudinally. Okay. After certain development in elongation, then the plant actually develop sidewise. Okay, so there are some apical dominance. After that there are lateral dominance. So these type of dominance are made possible due to the presence of a meristematic tissue. Okay, characters of a meristems. Meristematic tissue is a group of young, immature, undifferentiated and thin-walled living cells which retain the power of continuous division. अगर हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बात करें तो ये लोग यंग होते हैं, इमेच्योर होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड होते हैं एंड थिन वॉल्ड होते हैं. इनका जो सेल वॉल होता है वो बहुत ही थिन होता है, पतला होता है. क्यों? क्योंकि इसका ये रिटेन करता है, इसमें ये कंटिन्यूअस डिवीजन के पावर को रिटेन करता है. तो देखते हैं इसका क्या क्या कैरेक्टर होता है. सबसे पहले आता है कि ऑलवेज इन ए स्टेट ऑफ डिवीजन. इट इज एक्चुअली ऑलवेज इन ए स्टेट ऑफ एक्टिव डिवीजन. देन इट इज मोस्टली अनडिफरेंशिएटेड. दीज आर मोस्टली अनडिफरेंशिएटेड. दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस. इनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस आपको दिखाई नहीं देगा. They are usually isodiametric in shape, मतलब कि इसका जो डायमीटर है वो हर एंगल से सेम हो. मतलब कि जो सेल होता है वो सेल यूनिफॉर्म साइज का होता है. लिविंग सेल्स विथ अबंडेंट साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस फॉर ईच सेल. अगर हम देखेंगे
प्लांट में डेड सेल भी पाया जाता है, लिविंग सेल में भी लिविंग सेल भी पाया जाता है। तो ये जो सेल्स होते हैं ये लिविंग सेल्स होते हैं और इसमें बहुत सारे साइटोप्लाज्म होते हैं और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। सेल वॉल इज थिन एंड होमोजिनसली सेलुलोजिक, मतलब के जो सेल वॉल होता है वो उसमें जो सेलुलोज होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। फिर ये जो वैक्यूल्स होते हैं, वैक्यूल्स आर आइदर स्मॉल और एब्सेंट। इसमें वैक्यूल बहुत ही छोटे होते हैं या फिर टोटली एब्सेंट होते हैं। दे आर सो ग्रेट, दे एक्चुअली सो ग्रेटर एंजाइमेटिक एक्टिविटी एज दे आर मेटाबॉलिकली मोर एक्टिव। दिस सेल्स आर एक्चुअली मेटाबॉलिकली एक्टिव। सो जो मेटाबॉलिक मतलब कि इसमें बहुत सारा रिएक्शंस होते हैं, एनाबॉलिक कैटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं, तो इसीलिए ये लोग एंजाइमेटिकली एक्टिव होते हैं। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेम्स। Meristems are classified based on several categories. There are so many types of meristems. Okay, as I have previously mentioned, this video is actually a complete note. It's actually completely a note on meristematic tissue. Even you can pause the video at your convenient and you can write the notes. Okay. So the first category is stages of development of origin. मतलब कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है या फिर इसका डेवलपमेंट का पैटर्न क्या है, इससे पहला क्लासिफिकेशन आता है। फिर आता है बेस्ड ऑन पोजीशन, कहाँ कहाँ पर मेरिस्टेम का पोजीशन होता है। फिर आता है बेस्ड ऑन फंक्शन, मेरिस्टेम्स का फंक्शन क्या है। फिर आता है बेस्ड ऑन प्लेन ऑफ डिवीजन, ये कैसे डिवाइड करता है। और फिर बाद में आता है स्पेशल टाइप। देयर आर सो मेनी स्पेशल टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। Okay, so based on stages of development of origin, the meristems are like promeristem, primary meristem, secondary meristem. The promeristems are also known as primordial or embryonic meristem. They represents the foundation stage of meristematic cell, मतलब कि यहाँ से शुरू होता है। Present at the root and stem apices in the embryonal axis, मतलब कि ये सीड में मौजूद होता है और सीड का जो रूट का और स्टेम का जो एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, जहां से ये रूट और स्टेम एपिसेस डेवलप करता है, वहीं पर ये मौजूद होता है। फिर आता है प्राइमरी मेरिस्टेम, जो कि डायरेक्टली डिराइव होता है प्रोमेरिस्टेम से। इट ऑकर्स एट द एपिसेस ऑफ अ स्टेम, रूट एंड प्राइमोडिया ऑफ लीव्स। ओके, मतलब कि ये स्टेम रूट, जो रूट का और स्टेम का जो एपिकल मेरिस्टेम होता है वहां पर ये प्रेजेंट होता है। They divide and differentiate to form permanent tissue. यही सेल डिवाइड करता है और डिफरेंशिएट करके परमानेंट टिश्यू फॉर्मेशन करता है, जैसे कि पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा। फिर आता है सेकेंडरी मेरिस्टेम। दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द प्राइमरी मेरिस्टेम। दे रीगेन द पावर ऑफ डिवीजन, मतलब कि ये लोग परमानेंट हो जाते हैं लेकिन कुछ देर बाद ये लोग फिर मेरिस्टेम का कैपेसिटी रीगेन करते हैं। एंड हेल्प इन सेकेंडरी ग्रोथ इन थिकनेस, मतलब कि ये जो सेकेंडरी मतलब कि साइडवाइज ग्रोथ में ये हेल्प करते हैं, जैसे कि कॉर्ड कैम्बियम, इंटरकैलरी कैम्बियम। फिर आता है बेस्ड ऑन पोजीशन। अगर हम पोजीशन के बारे में देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। वन इज एपिकल मेरिस्टेम, सेकंड वन इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड द थर्ड वन इज lateral meristem. The apical meristems occur at the apices of the root and stem. Their activity results in longitudinal growth of the plant. मतलब कि plant height में ज़्यादा आगे बढ़ जाता है इसी apical meristem के सहायता से। The apical meristem exhibits a dome-shaped structure with a clear demarcation of outer layer that is tunica and inner layer that is corpus. The apical meristem composed of small cells and constitute promeristem. The cells of a promeristem differentiate into 3 regions, that is dermatogen, peribelum, plerome. Okay. सबसे पहले देखते हैं क्या होता है dermatogen. These dermatogen are outermost single layer. They divide and give rise to epidermis of the stem. ये लोग stem का epidermis देते हैं। dermatogen मतलब के जो skin होता है, स्किन को तो हम डर्म कहते हैं ना। इन रूट दे फॉर्म ए मास ऑफ स्मॉल टिश्यू कॉल्ड कैलिप्टोजन दैट गिव राइज टू रूट कैप। इन डाइकोट रूट इट फॉर्म्स एपिब्लेमा। सो दे हैव सो मेनी फंक्शंस।
Then peribleum. This is located internal to the dermatogen. It forms the cortex of the stem and root. Then comes the pleroma that lies internal to the peribleum, which is actually constitute the central region where cells show a tendency to elongate. It forms the procambium, which give rise to the vascular tissue, that is xylem fluid. Okay, so ये जो प्रोमेरिस्टेम होता है यही सब कुछ दे देता है एक प्लांट को। जो जो हम प्लांट एनाटॉमी में जो जो टिश्यूज देखते हैं, परमानेंट टिश्यूज जो जो हम देखते हैं, वो सब इसी से फॉर्मेशन किया जाता है। फिर आता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है, इट इज प्लेस्ड बिटवीन टू परमानेंट टिश्यूज। ओके, दीज आर पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टेम सेपरेटेड फ्रॉम द एपेक्स ड्यूरिंग ग्रोथ। मतलब कि जब एपेक्स डेवलप कर जाता है तो ये उसी से ही बिछड़ जाते हैं। दीज आर पार्ट ऑफ द एपिकल मेरिस्टेम, मतलब कि ये एपिकल मेरिस्टेम का ही पार्ट होता है, लेकिन कुछ देर बाद ये एपिकल मेरिस्टेम से बिछड़ जाते हैं। Found in monocot stems and leaf sheaths help in increasing the length of the organ. Okay, ये लीफ स्टेम मोनोकॉट में पाया जाता है और उसका लेंथ इंक्रीज करने में ये हेल्प करता है। फिर आता है लैटरल मेरिस्टेम। इट ऑकर्स लैटरली ऑन रूट्स एंड स्टेम्स, जो कि बेसिकली रेक्टेंगुलर होता है और ये टेंजेंशियली डिवाइड करता है और ये प्लांट को मोटा होने में सहायता करता है। मोटा होने में, थिकनेस पाने में ये प्लांट को हेल्प करता है। एग्जाम्पल कॉर्क कैम्बियम, फैसिकुलर कैम्बियम। इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी टिश्यू, लीड्स टू इंक्रीज इन थिकनेस, मोटा होने में सहायता करता है। फिर आता है बेस्ड ऑन फंक्शन। बेस्ड ऑन फंक्शन मेरिस्टेम may be of 3 types on the basis of physiological aspects, that is protoderm, procambium and fundamental or ground meristem. The protoderm is the outermost layer by radial division. It gives rise to a single layered epidermis. Okay. Sometimes by tangential division it forms multiple epidermis, as in case of xerophytes. हमने जब जेरोफाइटिक एडाप्टेशन देखा था वहां पर हमने देखा था कि वहां पर मल्टीपल एपिडर्मिस है, तो ये मल्टीपल एपिडर्मिस भी टेंजेंशियल डिवीजन से आता है, प्रोटोडर्म से। ठीक है। फिर आता है प्रोकैम्बियम। इट एलोंगेट्स टैपरिंग सेल्स ऑफ द ग्रोइंग रीजन कॉन्स्टिट्यूट द प्रोकैम्बियम, व्हिच प्रोड्यूसेस प्राइमरी वैस्कुलर टिश्यूज लाइक जाइलम एंड फ्लोएम। दे ऑकर एज स्कैटर्ड इन मोनोकॉट एंड रिंग इन केस ऑफ डाइकॉट्स। फिर आता है फंडामेंटल और ग्राउंड मेरिस्टेम। The remaining part of the meristematic tissue lying in between protoderm and procambium that constitute the fundamental or ground meristem. The cells are large, thin-walled and isodiametric. It forms hypodermis, cortex, endodermis, pericycle, pith and medullary. So मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो फिक्स है, लेकिन उसके फंक्शन, उसका ऑरिजिन, उसका डेवलपमेंट, उससे ही हम ये सारा क्लासिफिकेशन कर दिए हैं। लेकिन ये सब बेसिकली सेम ही है। इसके बारे में हमने पहले भी देखा, अब भी देख रहे हैं। फिर आता है बेस्ड ऑन प्लेन ऑफ डिवीजन। अगर हम प्लेन ऑफ डिवीजन के बारे में देखें तो यहां पर 3 तरह का मेरिस्टम्स पाया जाता है: मास और ब्लॉक मेरिस्टम, प्लेट मेरिस्टम, रिब और फाइल मेरिस्टम। जो मास और ब्लॉक मेरिस्टम होता है, दिस टाइप ऑफ मेरिस्टम दे डिवाइड इन ऑल प्लेन टू फॉर्म एन इरेगुलर मास। मतलब कि इसका कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होता है, ये इरेगुलरली डेवलप करता है। हेंस इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स लाइक एंडोस्पर्म्स, यंग पीथ, कॉर्टेक्स। फिर आता है प्लेट मेरिस्टम। द सेल्स डिवाइड इन 2 प्लेन्स, ओके, एंड thus they form plate like structures, that is periclinal followed by anticlinal division. ये जो तरह का डिवीजन होता है, इस डिवीजन से आप देखेंगे जो हमारा जो ब्रायोफाइट्स हुए तो और टेरिडोफाइट्स हुए, तो वहां पर जो जैकेट सेल फॉर्मेशन किया जाता है, आंथ्रिडिया, आर्किगोनिया, वहां पर जो जैकेट सेल फॉर्मेशन किया जाता है वो भी इसी तरह का डिवीजन से बनता है, पेरिक्लिनल डिवीजन, एंटीक्लिनल डिवीजन। तो ये प्लेट मेरिस्टम फॉर्मेशन करता है। रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ यूनिसेरिएट एपिडर्मिस एंड मल्टीसेरिएट लीफ प्लेट। ये एंजियोस्पर्म्स में क्या करता है, ये यूनिसेरिएट मतलब के एक लेयर का
एपिडर्मिस फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है, और मल्टीसेरिएट लीफ ब्लेड मतलब कि वो जो आपको कटिंग्स दिखे होंगे लीफ ब्लेड में, जो एक लीफ का जो धार होता है, वो धार में अगर आपको थोड़ी सी कट मार्क दिखे तो उसको हम मल्टीसेरिएट लीफ ब्लेड कहते हैं। तो यहाँ पर ये हेल्प करता है। फिर आता है रिब मेरिस्टेम और फाइल मेरिस्टेम। These cells divide anticlinally to form a column of cells. It results in increasing length of various organs. Then cortex and pith in stem are formed from this type of meristem. These cells they actually divide anticlinally to form column of cell. Okay, ये स्तर में फॉर्मेशन करता है सेल को। It results in increasing length of various organ. ये बहुत सारे organs के length को डेवलप करने में हेल्प करता है। जो कॉर्टेक्स और पीथ होता है स्टेम में, दे आर ऑल्सो फॉर्म फ्रॉम दिस मेरिस्टेम। फिर आता है स्पेशल टाइप ऑफ मेरिस्टेम्स। देयर आर सम स्पेशल टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम्स लाइक वुंड मेरिस्टेम व्हिच सराउंड द टिश्यूज ऑफ वुंड एंड मल्टीप्लाई टू हील ऑफ द वुंड। देन द इंड्यूस्ड मेरिस्टेम्स, मेरिस्टेम्स which are developed at the cutting regions of a plant body due to application of auxin, then helps in initiation of a root primordia as seen in hibiscus, then rose plants। हमें पता है कि जो हिबिस्कस प्लांट होता है और जो रोज प्लांट होता है, वहाँ पर हम स्टेम को कट करके लेके उसको सॉइल में डाल देते हैं और वहाँ से रूट फॉर्मेशन हो जाता है। तो वो जो रूट का इनिशिएशन होता है ये हम ऑक्सिन के एप्लीकेशन से करते हैं। तो ये इस तरह का मेरिस्टेम को हम इंड्यूस्ड मेरिस्टेम कहें। ओके, जो ऊन मेरिस्टेम होता है वो असल में टिश्यूज ऑफ ऊन को सराउंड करता है और हील करने में हेल्प करता है। फिर आता है पेरिस्टेमर। पेरिस्टेमर क्या होता है ना, व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्टोमाटल इनिशियल, देन आर्किगोनियल इनिशियल, हेयर इनिशियल एटसेट्रा। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। I hope you like the video. If you like the video, then share it among your friends and subscribe to our channel. Thank you very much.